Good morning, students. In last class, we have discussed about the physical property of metal and non-metal. Now, in this lecture, we will discuss about the chemical property of metal and non-metal. Now, when you have seen that when any metal or non-metal reacts with another chemical compound, so its internal composition will totally change, which will not happen in physical physical property or physical reaction. Got it? For example, physical reaction, metal and non-metal will change only the color, size, shape, etc. है ना, sound, these all are physical property. But what is a chemical composition? In which firstly, when metal or non-metal reacts with other chemical compound, so it's formed a new product. That means it lost its property. Got it? कोई भी मेटल जब किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन करेगी तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जब वो मेटल जिस फॉर्म में थी वो ना रहकर वो कोई और कंपाउंड बना लेती है. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट विथ अदर केमिकल कंपाउंड, सो इट्स फॉर्म ऑलवेज अ न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स केमिकल, that means internal composition will be totally changed. Simple. Now here first point is when a metal reacts with a oxygen. So when metal reacts with oxygen, it forms a metallic oxide. You have seen in your daily life that every metal reacts with oxygen and form a that metallic oxide. For example, iron reacts with oxygen, form a iron oxide, that is called rust, jung. And silver ornaments, gold ornament, that means gold silver reacts with oxygen, it forms a gold oxide and silver oxide. Got it? So all the metal when reacts with oxygen, it forms that type of metallic oxide. Now most of the metals forms a basic oxide, that means the oxide forms by that metal will be basic in nature. Got it? Here one example is given, demonstrated of firstly magnesium ribbon. You will take a sandpaper, pair of tongues, Bunsen burner, boiling tubes, water, red litmus solution. Simple. Now method. Take a small piece of magnesium ribbon and clean it by rubbing its surface with sandpaper. Why? Because we know that when magnesium ribbon is exposed in the air, so it's form a magnesium oxide in the presence of atmospheric oxygen. So we have to remove this magnesium oxide firstly before the burning of magnesium ribbon, and it only can be removed by the sandpaper. So sandpaper remove the layer of magnesium oxide from the magnesium ribbon, and then when it cleans, so we take a magnesium ribbon of one end with the pair of tongues and bring it other end over the flame of Bunsen burner. You can see in the diagram. Now third, put this magnesium oxide powder in the boiling tube. Whenever you will burn this magnesium ribbon in the flame of Bunsen burner, you will see that it will burn with a white dazzling light. ठीक है, एकदम white brightness के साथ ये जलता है. ठीक है. Now and form a सम ऐश मतलब राख. जब ये जलता है तो इसकी राख बनती है, एंड दीज ऐश इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. और यही राख क्या कहलाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड विच इज़ बेसिक इन नेचर. वी विल टेक दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू टेस्ट ट्यूब. ठीक है, ये जो राख बनी है इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ये इसे बर्न किया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है. गॉट इट? एंड दिस ऐश इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड वी विल टेक दिस इन द टेस्ट ट्यूब. एंड यू कैन सी हियर second picture, there is a test tube which contain a magnesium oxide powder which is dissolved in the water. ठीक है, और जब अपन इसे पानी में घोलते हैं तो इट फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सिंपल. जब इसे सिंपली ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं दैट इट फॉर्म्स अ मेटलिक ऑक्साइड, एंड व्हेन वी विल डिसॉल्व दिस magnesium oxide powder into water, so it form a magnesium hydroxide. Got it? Now observation, when magnesium metal burns in the
air, it combines with oxygen to form metallic oxide. Here the reaction shows that magnesium reacts with oxygen, it forms MgO, magnesium oxide. Got it? Second, when this magnesium oxide is dissolved into the water, so MgO plus H2O, so it forms a magnesium hydroxide, which is basic in nature. This is basic oxide and this one is basic in nature. How you can identify this is basic in nature? Whenever you will dip it into red litmus paper or red litmus paper solution, so it will turns into ब्लू कलर. जब आप इसका सॉल्यूशन जो रेडी किया ना, अपने ऐश को वाटर में डिसॉल्व किया, अब इस सॉल्यूशन को आप रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा. दैट मीन्स वो कैसा है? बेसिक नेचर का. ठीक है. एंड यू हैव सीन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, है ना. एसिड दैट मीन्स दो सब्सटेंस विल चेंज द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, है ना. एंड बेस मीन्स दो सब्सटेंस विच चेंज द रेड लिटमस पेपर इनटू blue. So here you can identify the nature of acidic and basic of this metallic oxide by dissolving it into red or blue litmus paper. Simple. So metallic oxide is basic in nature. Now underline in your book, this term is important for you. Metallic oxide generally are basic in nature. Similarly, when iron object is left in damped air, you can see in your surrounding, when iron object react with oxygen, okay, and atmospheric oxygen in the presence of moisture, so it's form a reddish brown flaky substance, है ना. पाउडर जैसा सरफेस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना. रस्ट यानी कि जंग. आपने ब्राउन फ्लैकी लेयर देखी होगी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, जो कि हाथ में लेने पर पाउडर सी नज़र आती है और ब्राउन कलर की होती है. ठीक है. ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन. अब कैसे होती है रस्टिंग? आयरन combines with oxygen in the presence of water. Now water is present in your surrounding and atmosphere, है ना, which is called moisture. You know that air and oxygen both are present in atmosphere. So this water small droplets, it's called oxygen. It also reacts with iron and oxygen and forms a hydrated iron oxide, that is called rust. Simple. Now for example, collect a spoonful of rust and dissolve in it very small amount of water. Simple. Similarly magnesium oxide. And when this suspension is formed, brown color suspension is formed, and we test the solution. Now see here, there is a rust powder, and you will take some water in test tube and dissolve this rust. This is called rust suspension. Simple. And whenever you will put this substance into red litmus paper, so it turns the red litmus paper into blue, which is a property of base or acid. बेसिक प्रॉपर्टी. ठीक है. क्योंकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू कलर में. सो दिस आयरन ऑक्साइड सस्पेंशन इन वाटर चेंज द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू सॉल्यूशन. Simple. So we can conclude here that this oxide is basic in nature. This is the second example. When copper, third example, when copper object reacts with any oxygen in the presence of moisture. You can see here when copper vessels we are using, so we see that some black and dark brown spots on the surface of that copper vessel. ठीक है. So how it's happen? Because these copper vessels are exposed in the air and it reacts with atmospheric oxygen and moisture and form a copper oxide. Got it? And this copper oxide when dissolved in the water, so it's form a copper hydroxide. Now there is another example to understand. When copper objects remain in the damped air for a long time, है ना, it reacts slowly with carbon dioxide and water of air, and it loses its shine, and due to the formation of green coating
of the copper hydroxide and copper carbonate on the surface of object. There is a two type of substance forms on the surface of copper vessel, copper hydroxide and copper carbonate. Okay, you can see here copper reacts with firstly oxygen, then water, then also carbon dioxide. Generally metal reacts with only oxygen and hydrogen, sorry, water. ठीक है, but here we also see that copper reacts with a carbon dioxide also and form a copper hydroxide and copper carbonate, and this is green color and present on the surface of copper vessel. Okay, and whenever we will properly wash that copper vessels with the detergents and any salt thing, for example lemon, so this layer automatically removed from that vessel. Simple. So this is a copper which are very bright shining, and this is a damped air, है ना, damped air copper, that means dull in color because it forms a copper hydroxide and copper carbonated on the surface. Most of the non-metal reacts with oxygen and form a acidic oxide, है ना. It's just opposite to the metal reaction. Simple. When metal reacts with oxygen, it form a basic oxides which is basic in nature, and when non-metal reacts with oxygen, it forms a non-metallic oxide, but it is in acidic in nature. Okay, for example, see the activity 4. Firstly, you will take a sulfur powder, a deflagrating spoon, and Bunsen burner, gas jar, red and blue litmus paper for testing the substance, which is acid or base. Simple. Now take a small amount of sulfur powder and deflagrating spoon and heat it over a flame. ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्पून जो जल्दी मेल्ट नहीं होती जब हम उसे फ्लेम पर रखेंगे, है ना. एंड उस सल्फर पाउडर को लिया बिकॉज सल्फर इज़ अ नॉन मेटल, एंड हियर वी आर रीडिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, सो वी टेक अ सल्फर पाउडर बिकॉज सल्फर इज़ अ नॉन मेटल. ओके, एंड व्हेन we have seen that the magnesium ribbon burn in the oxygen or in the flame. So similarly we are taking same example with non-metal, that is sulfur powder. Now when sulfur start burning with a blue flame, ठीक है, now introducing the deflagrating spoon in a gas jar and sulfur burns in the air of gas jar to form a पंजेंट स्मेलिंग. पंजेंट मतलब थोड़ी सी स्मेल आती, बदबू सी. केमिकल की स्मेल कैसी होती है, बदबू सी, तो उसे हम पंजेंट कहते हैं. देन फॉर्म अ सल्फर ऑक्साइड. सिंपल. मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म अ मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. कीप द गैस जार कवर्ड विद द लीड टू एंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, दैट मीन्स विच हैव अ हैंडल ऑन दी टॉप साइड. ठीक है, जिसके ऊपर की तरफ है. आपने घर में देखा होगा जब ऑयल या घर में किसी लिक्विड थिंग को निकालने के लिए इस तरह की वो स्पून का यूज़ किया जाता है जिसका हैंडल ऊपर की तरफ होता है. ठीक है, जिसके कारण फ्लेम जल्दी गर्म नहीं होता ये हैंडल. तो यहाँ पर क्या होगा, इस जैसी फ्लेम में बर्न किया है तो फ्लेम में बर्न करने के बाद इसे एक गैस जार के अंदर डाल दिया. ठीक है, ये गैस जार आपको नज़र आ रहा है, और फिर गैस जार को कवर कर दिया. तो कवर करने से ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ चल रहा था. ठीक है, और ये अंदर क्या होता है, अंदर इस गैस जार के अंदर इसने बर्न हुआ ये और एक फ्लेम प्रोड्यूस की, और फ्लेम प्रोड्यूस की ब्लू कलर के साथ. ठीक है, और जैसे हमने गैस जार में बर्न किया तो इस सल्फ़र, इस गैस जार को जब ओपन करते तो इसमें से बहुत ही पंजेंट यानी केमिकल की जैसी बदबू होती है, ऐसी स्मेल आना शुरू हो जाती है. ठीक है, और अंदर जो पाउडर बनता है इसके बर्न होने के बाद, ये इसके कम्प्लीटली बर्न होने के बाद वो कहलाता है सल्फ़र ऑक्साइड. फिर सल्फ़र ऑक्साइड की अब हम क्या करते हैं, टेस्ट. तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, रिमूव द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून फ्रॉम द गैस जार आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम के बाद इसको हटा दो. एंड एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार. अब गैस जार के अंदर क्या डाल दिया हमने, कुछ अमाउंट में वाटर डाल दिया. ठीक है, और जल्दी से ढक्कन को लगा दिया. शेक द गैस जार टू डिजॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बन गया है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी, यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि एक सल्फर एटम के साथ 2 एटम ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड नहीं बोलते हुए हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे कंपाउंड केवल ऑक्साइड बनाए, अगर 2 एटम लग रहे हैं तो डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड अंदर बनी थी उसमें से थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसे शेक कर लिया, ठीक है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व हो गई, जैसा हमने मेटल में पढ़ा था। ठीक है, नाउ शेक द गैस जार टू डिजॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाउ पॉर दी वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन अ पेट्री डिश। अब क्या करना है, जो पानी को मैंने शेक किया था, सल्फर डाइऑक्साइड अपन ने जिस वाटर में डिजॉल्व किए उसे हम पेट्री डिश में लेकर चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, एक बार हम ब्लू लिटमस पेपर रखेंगे और एक साइड हम रेड लिटमस पेपर रखेंगे। हमने देखा रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया, यानी अगर रेड ब्लू में चेंज हो जाता दैट मीन्स ये सब्सटेंस एसिडिक बेसिक होता, बट यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो चुका है, दिख रहा है आपको रेड कलर में। ठीक है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। दिस एक्टिविटी शोज दैट व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। सिंपल। नाउ ऑब्जर्वेशन, फर्स्टली सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स अ सल्फर डाइऑक्साइड which is acidic oxide. Simple. And this acidic oxide is dissolved into water, so it's form a sulfurous acid which is acid in nature, which turns a blue litmus paper into red color. So these sulfur acid turn a blue litmus paper into red color, so it shows that it is an acid and sulfur dioxide is acid in nature. So these indicate the non-metal reacts with oxygen form a acidic oxide. Simple. Here second property, when any metal or non-metal reacts with water, so it form metallic hydroxide. Simple. Metal reacts with oxygen, form a metallic oxide. Non-metal reacts with oxygen, form a non-metallic oxide. Simple. Similarly, second point indicate that when metal reacts with water, okay, so it forms metal hydroxide. ठीक है, एंड मेटल ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करती है, हम यहाँ रिएक्शन विथ वाटर पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों में ही पढ़ेंगे, मेटल में भी और नॉन मेटल में भी। सो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, so it form metallic hydroxide और metal oxide and hydrogen gas। यानी कि या तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना सकती है या सिंपल मेटेलिक ऑक्साइड बना सकती है, पर साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि जो मेटल रिएक्ट्स करती है विथ कोल्ड वाटर या सम हॉट वाटर एंड सम अदर विथ स्टीम। देखो अब मेटल का रिएक्शन भी कैसा होता है, या तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगी, है ना, हम यहाँ वाटर से रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, वाटर कोल्ड हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, या स्टीम फॉर्म में भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन दी रिएक्शन ऑफ दैट मेटल, different type of metal. Okay, so as you perform an activity to understand the action of metal with a water. Now activity 5. Here firstly the metal reacts with water and form a hydrogen gas, because we have discussed that when metal reacts with water it form a metallic oxide or metallic hydroxide and also hydrogen gas. Cut a small piece of sodium and remove the kerosene by pressing the piece between the folds of with filter paper. देखो अच्छे से एक मेटल सोडियम मेटल लेते हैं, यू नो दैट सोडियम is very highly reactive. Whenever we will put in the open atmosphere, it reacts with the oxygen of the atmosphere automatically and burn with a flame. यानी सोडियम मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, इस सबको अलग से कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसे ओपन रख लिया ना तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन खुद ही कर लेती है और खुद ही रखे रखे ही जल जाती है। ठीक है, फ्लेम शो कर देती है। तो यहाँ पर हम सोडियम को हमेशा कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इसे वाटर में रख दिया तो भी ये वाटर
कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगी, बिकॉज वाटर इज फॉर्म्ड बाय H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इसे ऑक्सीजन नहीं देना है हमें, जैसे ही आपने इसे ऑक्सीजन दिया ये रिएक्शन कर लेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि सोडियम का पीस लिया, उसे हमने उसके सरफेस से हमने केरोसिन को हटा दिया। ठीक है, फिल्टर पेपर से क्लीन कर दिया। अब उसे हमने 250 ml बीकर लिया, 250 ml का, उसे हाफ फिल किया वाटर से। ठीक है, और उस सोडियम पीस को वाटर के अंदर डाल दिया। तो हमने क्या देखा कि सोडियम वाटर सरफेस पर फ्लोट यानी तैरता है और कुछ टाइम के बाद मेल्ट हो गया और सिल्वरी वाइट बॉल की तरह दिखाई देने लगा। ठीक है, एंड दिस सिल्वरी वाइट बॉल ऑफ सोडियम डार्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विथ अ हिशिंग साउंड। ठीक है, हिशिंग साउंड की तरह धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है और बबल्स बनाना शुरू करेगा और धीरे धीरे इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएंगे। और दिस सिल्वरी वाइट बॉल ग्रेजुअली बिकम्स अ स्मॉलर इन साइज। धीरे धीरे ये छोटा होता जाएगा और आग पकड़ लेगा और जलता रहेगा, एक फ्लेम बनाता रहेगा और इसके अंदर से हिशिंग, है ना, इस तरीके से इस तरह की साउंड निकलती जाएगी और गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती जाएगी। और ये कैसे बर्न होता है? गोल्डन येलो फ्लेम में। दिस सॉल्यूशन बिकम्स अ हॉट, और धीरे धीरे ये सॉल्यूशन पूरा हॉट बन जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है? अगर वो बर्न हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट के कारण पूरा वाटर सॉल्यूशन गर्म हो जाता है और ये इसमें सोडियम मेटल मेल्ट हो रही है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसलिए वो बर्न होता रहता है आग जलने के साथ साथ। नाउ आफ्टर दिस रिएक्शन इट सॉल्यूशन इज टेस्टेड विथ अ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब देखो, हमने सोडियम को बर्न किया, जिस वाटर के अंदर हमने इसे बर्न किया था वो वाटर हमारे लिए, इसका एक सॉल्यूशन रेडी हो गया है। अब इस सॉल्यूशन को हम रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर पर डालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, जबकि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज नहीं हुआ। तो रेड का ब्लू में चेंज होना क्या कहलाता है? ये सब्सटेंस बेसिक है। जिसका मतलब है कि जब कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करती है और जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक होता है। दोनों पॉइंट कॉमन है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो भी बेसिक रहेगी। ठीक है, और मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगी तब भी उसका नेचर बेसिक रहेगा। तो ये पॉइंट कॉमन है जो आपको लर्न करने के लिए सिंपल है। नाउ देखो, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज अ हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो फॉर्म अ हीट, है ना, विच वार्म द सब्सटेंस और सॉल्यूशन। नाउ कंक्लूजन, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। सिंपल, मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर क्वाइट अनरिएक्टिव, क्योंकि इनकी रिएक्शन बहुत कम होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम है ना, उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, इतनी हाई कि अगर आपने खुद उसे छोड़ दिया तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खुद ही जल जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं, रूम टेम्परेचर पर ही बर्न हो जाती है। जबकि गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम कुछ ऐसी मेटल है जो रिएक्टिविटी बहुत कम शो करती है। ठीक है, इस कारण इनके ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स, कॉइन्स वगैरह, क्योंकि इन पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसे आप ज़्यादा हीट दोगे तब जाके रिएक्शन करती है, पर बहुत रेयरली करती है। सो प्लेटिनम की अलॉय बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि इस पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि जल्दी रिएक्शन शो नहीं करती। सिंपल। नाउ रिएक्शन विथ एसिड, when any metal reacts with acid form their representative salt and hydrogen gas। अभी आपको लर्न करना है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल और नॉन मेटल क्या बनाती है, जब वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है और किस नेचर का बनता है। उसी तरह व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड सो इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो ना एसिड है ना बेस है। जैसे अभी आपने देखा ना कि मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, तो हमने कहा वो बेसिक है। उस तरह वाटर से रिएक्शन की तो फिर बेसिक बनाया, नॉन मेटल रिएक्शन करता है तो एसिडिक बनाता है। तो उसी तरह जब मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो वो सॉल्ट बनाती है। सॉल्ट मतलब जो चीज़ बनेगी वो ना एसिड रहेगी ना बेस रहेगी, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखो जिंक एक मेटल है जिसने एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया तो उसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। उस तरह मैग्नीशियम ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की तो मैग्नीशियम सल्फेट, और कौन सी गैस इवॉल्यूट होती है, हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट बनाती है विच इज़ नॉट एसिड और बेस, और हाइड्रोजन गैस इस रिलीज होती है। ठीक है, नाउ टू शोज द हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ अ डाइल्यूट एसिड, कैसे मेटल और नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती है। तो एक मैग्नीशियम रिबन ले लो, एक एल्यूमिनियम फॉइल ले लो, आयरन ले लो, कोल ले लो, सल्फर ले लो और सल्फर पाउडर और 5 टेस्ट ट्यूब ले लो। देखो यहाँ मैंने 3 मेटल्स ले रखी है, मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉइल और आयरन नेल, जबकि यहाँ पर कोल और सल्फर पाउडर नॉन मेटल में आता है। ठीक है, इस तरह से 5 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने। ठीक है, A B C D और E। नाउ टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटल विथ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सभी के अंदर हमने क्या किया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है। डाइल्यूट का मतलब होता है प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है वो। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया जाता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और हमें लैब में प्रिकॉशन रखना होती है, तो थोड़ी हमारी खुद की प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि एसिड का एक भी ड्रॉप अगर हमारी स्किन पर आ जाए तो वो बर्न कर देता है। ठीक है, और बहुत फास्ट रिएक्शन होने के कारण कभी कभी बहुत तेज़ी से गैस इवॉल्व होती है, तो किसी भी टाइप का हार्म ना हो और रिएक्शन धीरे धीरे हो, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो ये डाइल्यूट हो जाता है। ओके, सो इसे हमने लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब धीरे धीरे हम रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने उसे रखा और मैच स्टिक उसके पास में लाए, हर एक टेस्ट ट्यूब के पास मैच स्टिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है वो विगोरस रिएक्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, उसके अंदर से उस टेस्ट ट्यूब में से बबल्स निकलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही इसके आगे इस मैग्नीशियम रिबन जिस टेस्ट ट्यूब में थी उसके आगे जैसे ही मैच स्टिक लेकर आते जलती हुई, तो क्या होगा, वो उसके अंदर से पॉप साउंड से बर्न होना स्टार्ट करती है। जैसे छोटे छोटे पटाखे फूटते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटा साउंड। ठीक है, जैसे कोई चीज़ फूट रही हो तो वो क्या होता है, उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो जाते हैं, बर्न। टेस्ट ट्यूब से बाहर जो गैस निकलती है वो फ्लेम के साथ, मैच स्टिक की फ्लेम के साथ बर्न होना शुरू कर देती है, और ब्लू फ्लेम से वो बर्न होती है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रही, क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्यूल गैस है, उसे अगर थोड़ा सा भी फ्लेम मिल जाती है तो वो बर्न हो जाएगा। उसी तरह एल्यूमिनियम में हमने सेम चीज़ देखी। एल्यूमिनियम मेटल जो टेस्ट ट्यूब थी उसके साथ उसमें से भी कलरलेस गैस आउट होने लगी, और जैसे ही हमने कुछ फायर उसके आगे लाए टेस्ट ट्यूब के आगे, तो वो पॉप साउंड यानी कि छोटे छोटे पटाखों जैसी आवाज़ से वो बबल्स फूटने लगे और बर्न होने लगे ब्लू फ्लेम के साथ। इसका मतलब उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकली। सेम थिंग आयरन नेल के साथ भी होती है, उसमें से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट कोल और सल्फर में से कोई गैस नहीं निकली। इसका मतलब है मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, बट नॉन मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। ठीक है, तो ये सारे इसके कंक्लूजन्स थे, और ये आपको रिएक्शंस के थ्रू समझा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिएक्शन कर लें तो भी वो MgCl2, मतलब जहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा था वहाँ आप हाइड्रोक्लोरिक ले लो, है कोई भी एसिड, बट फाइनली बन क्या रहा है, बन तो सिर्फ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है। उस तरह आयरन जो अगर HCl से रिएक्शन कर लें तो क्या बनेगा, तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल आएगी, क्योंकि हर केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनेगा। कब, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी। ठीक है, बट नॉन मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्शन कर ले, चाहे फिर वो सल्फ्यूरिक हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक हो, वो किसी से भी रिएक्शन कर ले, वो एसिड और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगी। ठीक है, सो कंक्लूजन समझ में आ गया हमें अच्छे से कि मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करती है, बट नॉन मेटल एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती। सिंपल। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, तब तक आप लोग इन तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लीजिए और सारे एक्टिविटीज़ को भी देख लीजिए। ओके, सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।